Hello children, let us start revise chapter. Third, pair of linear equations in two variables. Linear equation in one variable. An equation in the form of ax plus b equal to 0 is called a linear equation of one variable where one variable x where a and b are real numbers and a not equal to 0. Linear equation is first degree equation. Here a is called the coefficient of variable x and v is called constant term. Every linear equation represents a straight line in graph. Linear equation in two variables. An equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to c equal to minus c is called a linear equation of two variables x and y where a, b and c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0. Here a and b are called coefficient of variable in x and variable x and y where c is called the constant term. Where c is called the constant term. If one of them a and b, a or b 0, then it is one variable linear equation. If this is linear equation two variable, if a and b not equal to 0, they are different, they are any real numbers. Four methods find the value of linear equation two variable. First is graphical method. It represents always straight line. In first video and second period I told you about this. So come to next. You know, in graphical method, a linear equation in two variable is represented by a straight line. So a pair of linear equation will be represented by two straight lines. There are three possibilities. The two lines intersect at one point. या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं. द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट ओवरलैप ईच अदर, यानी एक ही लाइन होती है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल ही हो जाती है. नाउ अलजेब्रिक मेथड. देयर आर थ्री मेन मेथड. यानी फर्स्ट ग्राफिकल होगा तो अलजेब्रिक थ्री मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड by equating the coefficient. Third is cross multiplication method. Now, graphical method solution of pair of linear equation. 2x plus 3y, 2x plus 3y equal 5, 3x plus 7y equal to 9. We take two equations, two linear equation. 2x plus 3y equal to 5, 3x plus 7y equal to 9. Its coefficient a1 upon a2 यानी 2 upon 3, v1 upon b2 3 upon 7. Clearly both are not equal. c1 and c2 5 upon 9. फर्स्ट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, यानी वन पॉइंट पर कट करेंगे. हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. इसको हम यूनिक भी कहते हैं. यूनिक यानी वन बाय वन, जैसे आप सभी यूनिक हो, आप जैसा कोई और नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 3x plus 6y equal to 5, 2x plus 4y equal to 8. Its coefficient a1 upon a2 3 by 2,
अगेन b1 अपॉन 6 अपॉन 4, अगर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं 3/2 यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 upon c2 5 upon 8 they are not equal. If first two equal but c constant term ratio constant term not equal, so graph of these lines parallel lines it has no common solution. क्योंकि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो it has no solution. Now third example, 3x plus 4y equal to 2, cx plus 8y equal to 4. First 3/2, 3/6, we will get 1/2. Second, v1 upon v2 4 upon any also 1/2. 2 upon 4 also 1/2. All are equal, coincident lines यानी ओवरलैप करेंगे यानी दोनों लाइनों का ग्राफ एक ही होगा. इसका मतलब इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ये हमें बताती है भी अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हैं उनका सॉल्यूशन किस टाइप का पॉसिबल हो सकता है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज ए सॉल्यूशन, मतलब जिसका एक सॉल्यूशन होता है, इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर. जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका एक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है. ए पेयर ऑफ linear equation which has infinitely many solutions is called dependent pair of linear equations. को dependent pair of linear equations भी कहते हैं यानी consistent भी कहा जाता है. dependent pair of linear equations is also called consistent. आप कह सकते हो one solution हो many solution हो तो आप consistent बोलोगे. जब आपके पास कोई solution हो inconsistent होगा. जब आपके पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं तब आपको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हो. सब्स्टिट्यूशन मेथड which is already video of this method is given but I repeat it. Working rules, how to apply substitution method. Find out one of the variable in terms of the other variable from any one of the given equations. यानी दो इक्वेशन दी होती है उनमें से किसी एक इक्वेशन का को एक वेरिएबल के इक्वल करो और दूसरी में उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन द अदर इक्वेशन. इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो और लीनियर की तरह इसको सोल्व कर लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिंगल वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इज वन ऑफ द गिवन इक्वेशन में पुट करोगे. सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू ऑब्टेन द सेकेंड इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास x माइनस 2y इक्वल 5 एंड 5x प्लस 2y इक्वल 49. दीज आर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल 5, सेकेंड इज 5x plus 2y equal 49. This name is 1, this name is second. Now from equation first we get first say x equal minus 2y transpose to right hand side, it becomes positive 2y. It means x equal 5 plus 2y. This is called third equation. Now this values put in second equation. 5x 2y इक्वल 49. x की वैल्यू 5 प्लस 2y रख दो. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10y प्लस 2y इक्वल 49. 10y प्लस 2y 12y. 25 को राइट साइड ले जाओ, इट बिकम्स माइनस 25. 49 माइनस 25 इक्वल 24 यानी y इक्वल 24 अपॉन 12 यानी 2. एक वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर. अब इस वैल्यूज को फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन में हम रख देंगे. y की वैल्यू यहाँ पे 2 2 जा 4 4 प्लस 5 9. सो वी विल गेट x इक्वल 9 एंड y इक्वल 2. इज इट क्लियर नाउ? दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, अनदर वन सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेट का मतलब है किसी को एलिमिनेट करना, किसी को रिमूव करना. हाउ टू अप्लाई दिस मेथड? फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द इक्वेशन
by non-zero constant so that the coefficient of the variable to be eliminated. यानी किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोनों इक्वेशंस के x या y के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड। सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जो अब वन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है इसको किसी एक में पुट कर दो, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सो ऑब्टेन इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड सोल्व फॉर द अदर वेरिएबल। एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 8y इक्वल 9, 2x प्लस 3y इक्वल 4। 5x प्लस 8y इक्वल 9, 2x प्लस 3y इक्वल 4। देखो, एक का नाम हम 1 रखते हैं, दूसरी का नाम सेकंड रखते हैं। अब हम यहाँ पर किसी x या y की वैल्यूज को, जो x और y है, इनके x या y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। यहाँ पर हम x के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। ऊपर वाले का 5 है, नीचे वाले का 2, दोनों का जो एलसीएम 10 बना, तो इसका मतलब यहाँ 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स, और सेकंड इक्वेशन को 5 से करें। देखो, फर्स्ट को हमने 2 से किया, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, यानी इक्वेशन बन गई 10x प्लस 16y इक्वल 18। यहाँ से 5 से किया, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15, 15y इक्वल 4 5 जा 20। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10x को 10x से सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस के हो जाएंगे, सिंबल चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 16y माइनस 15y यानी माइनस के होंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/18 माइनस 20 यानी माइनस 2, y इक्वल आपके पास -2 आ गया। अब इस वैल्यूज को किसी एक में रखते हैं, हम फर्स्ट में रखते हैं, तो y की वैल्यू को -2, 8 2 जा 16, 8 इंटू -16, 16 को राइट साइड लेके जाओगे 9 प्लस 16 यानी 25, 5x इक्वल 25, 25 अपॉन 5 x इक्वल 5। इस प्रकार हम एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमें किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। नेक्स्ट है जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस मेथड learned by us in next video. So thanks, have a nice day. Please complete exercise 3.4. Any problem, any query, please ask me, please call me. Thank you. Jai Bharat, Jai Hindustan.